Hello and Assalamu alaikum. Today we are going to discuss our new topic, and it's the first topic of this new subject, that is preemption or shufa. In, in Arabic it will be called. Preemption is said to be a religious right, but I think it's not entirely true, because this right actually dates back to Roman and Greek era too. क्योंकि even today we see it when it comes to sale of shares in a company, especially when it comes to common law countries like England. तो वहाँ पे ऐसे होता है कि जब एक कंपनी में दो या दो से ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनमें से अगर कोई एक शेयर होल्डर, इफ़ ही वांट्स टू सेल हिज part of shares, then the other shareholder in that company has the prior right. The preemption of the right of preemption is available to him. लेकिन but when it comes to preemption according to the Punjab Preemption Act 1991, we are talking about only immovable property. The property which is immovable is the only subject matter, and not only the property, not only the immovable property, but the property which is situated only in village area, not in cantonment area or not in any urban area. So the property should be immovable. This is the first thing. And the second thing, that immovable property should be situated in village area, not in urban or cantonment areas. So it is the right possessed by a person to acquire a property sold to another in preference to that other by paying a price equal to that settled or paid by the later. So it's like this. It's a very dangerous right when it comes to right of when it's come to sale, because if it's like this, that if I am purchasing something, if I'm purchasing a land from another person, and there is this valid sale according to Transfer of Property Act, but then there is the other person who at once comes and say, no, it was my right to purchase this land, why did you purchase this land? So if his right will be successful, the whole transaction, the whole sale transaction will be void, and this property which I purchased will be bought by this other person. So imagine the kind of confusion and the kind of ये जो इस किस्म का, यानी कि जो एक सेल का राइट है, जो कि कंक्लूसिव और एक कंक्लूडेड राइट है, ये उसके ऊपर एक अटैक है प्रियम्पशन का राइट जो. It's a desire to prevent the introduction of a stranger among co-sharers and neighbors that likely to cause inconvenience. जो इस्लाम में पर्दे का कानून है ना, हिजाब, पर्दा, यानी कि जिस जगह पे आप रहते हैं उधर वो आप इसके इर्द गिर्द के मसाए वगैरह वो एक फैमिली की तरह हो जाते हैं. सो टू प्रिवेंट दैट फैमिली स्ट्रक्चर, टू प्रिवेंट द पर्दा, द concept of पर्दा, this inconvenience, this right of preemption exists. History of preemption laws can be traced back to period of Greeks and Roman Empire. Common law also used this right, just like I told you about the shares. If I have a company, and this is a private limited company, and there is a partner of mine who is also a shareholder in that company, and if I want to sell these shares to some other person, then this other guy who is the partner in this company may file a suit in the court with this preemptive right, that he has the first right to purchase those shares. It is an exception to general law regarding sale and purchase, because through this right, preemptor can seek revocation of a valid contract of sale of an immovable property. So you can understand that this is a very, very, very dangerous right in this sense. So what are the objects of preemption? Why is there a preemptive right? Why is it first place that it? Why does it exist? Because it excludes the stranger from a particular vicinity. It preserves the honor and homogeneity of a particular community. For example, if there is a community, and it will not be a wise thing to introduce a stranger to that community,
और उस स्ट्रेंजर की कम्युनिटी में आने से हो सकता है कि वो कम्युनिटी का जो एक वो रख रखाव है वो ख़राब हो जाए, तो उसके अगेंस्ट जो है ये है, दैट इज़ टू promote familial comfort, to protect the native feelings as regarded to elitism and privacy of private life. Why? Because you are a community and you have your neighbors around you, and suddenly and there is this one other person who is a stranger to that area. He comes there and he buys land there and he settles there, so it may cause a lot of inconvenience. That is to avoid disintegration of holdings. Holdings means when you have a खेवट, खेवट याद है ना, खेवट जो हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में खेवट पढ़ा था, यानी कि मुख्तलिफ खातादार और हो जाए, यानी खाता एक, उस एक खाते में मेरे साथ कुछ और लोग शरीक हैं, एकदम से एक नया शख्स आता है और उसी खाते में वो भी शराकत इख्तियार कर लेता है, तो वो जो होल्डिंग है पूरी की पूरी, उसका एक सिलसिला डिस्टर्ब होता है बिकॉज ऑफ द एंट्रेंट ऑफ new person who is stranger to that khata, who is stranger to that area, who is stranger to that land. It is an exceptional right. Why it's an exceptional right? Because it revokes the valid sale. Preemptor has to abide by very strict conditions, and we will discuss these conditions also, imposed by law in case of non-compliance of which his right is relinquished. So the question which comes in your mind, that what will be the why is it strict? It is strict because it is going to attack very basic concept of jurisprudence, that is ownership. I have an ownership of a land, so it should be my choice that who I want to sell. But then there is this preemptor who is going to attack on my right of sale. So imagine this is the so this is the reason why it's an exceptional right. It is not promulgated in urban area including cantonment limits. Who can file suit? So this is section 6. Shafi Sharik, co-owner of a property sold, the co-owner in the same khata, in same khewat, in the same khasra he has the land, in the same khewat he has the land, in the same shrik khata hai wo. For example, through inheritance, land has been devolved upon me and my brother, and my brother sells that land to somebody else, but I am the one who has the shared khata with that with my brother. Why? Because it is coming from the older generation to me and my brother, so I have the first right to purchase the land from my brother. I mean, this is another case if I do not have that much price, if I cannot pay that price which my brother is asking, that is another issue. But plainly said, it is my first right. Because why? Because I am Shafi Sharik, I am in the Sharik, I am a Sharik खाता, मैं शरीक हूँ उसमें, उस खेवट, उस खाते में. Shafi Khalid, he is the participator in easement rights over the property sold. For example, I have a land and there is this attached land with me, and my right of way, or let's say a water channel through water, that water which is irrigating my land is coming from this other guy, from this other guy's land. So if somebody else purchases that land, so it may happen that he will cause inconvenience to me. मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन को रास्ता जो है दूसरे बंदे की ज़मीन से आता है, तो मेरा ईजमेंट राइट है कि मैं उस रास्ते से, तो कितने सौ सालों से मेरी जनरेशन चलती हुई आ रही है, हो सकता है जो नया बंदा आके उस ज़मीन को ख़रीदे वो मुझे गुजरने का रास्ता ही ना दे, तो इससे मुझे इनकन्वीनियंस हो रही है ना. ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. तो ये जो इनकन्वीनियंस है, दैट राइट ऑफ ईजमेंट, दैट इज़ शफ़ी खलीद. एंड देन कम्स शफ़ी जार, ही इज़ द नेबर. So I have, my land is situated in one khasra and there is this adjacent khasra.
या वो मेरी 1 एकड़ ज़मीन है एक मौजे में, तो अब जहाँ पे तक मेरी ज़मीन है उस ज़मीन के साथ जो जो ज़मीनें लग रही हैं वो मेरे नेबर्स में आते हैं। तो फिर ये उनका अगर ये दोनों नहीं है, यानी कि अगर शफ़ी शरीक नहीं है, शफ़ी खलीत नहीं है, तो उसके बाद जो तीसरा राइट बनता है वो शफ़ी जार का बनता है। नॉर्मली ये होता है कि ये तीनों जो राइट्स वाले बंदे हैं ये तीनों अपनी अपनी तरफ से प्रीएम्पशन का राइट क्लेम करते हैं, और उसके बाद जो है वो इसको जो है वो करते हैं। A partner in the sold property has a superior right to one who is only a partner in its easement right. अब ये जो है ये बात करना कि किसके पास कौन सा राइट बन रहा है, कौन जो है वो इसको क्लेम करता है। पहला राइट, सुपीरियर राइट किसका बनता है? सुपीरियर राइट उसका बनता है जो कि शफ़ी शरीक है। शफ़ी शरीक अगर नहीं है तो फिर राइट बनेगा शफ़ी खलीद का, फिर उसके बाद शफ़ी जार का बनता है। इसके अलावा इसमें कुछ और कंडीशंस भी हैं जो हमें पता होना चाहिए कि इट इज़ एक्सरसाइजेबल इन केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो सेल शुड बी मस्ट। यानी कि ये तीनों तो आपके पास हैं ही ना, कि ये वो बंदे हैं कि जो उस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो जब तक कि वो प्रॉपर्टी सेल नहीं होती, यानी कि कंफर्म सेल होनी चाहिए, तब उसके बाद यानी कि जो नेक्स्ट आप जिसको सेल की गई है बेसिकली लैंड आपने उससे लेनी है। अगर अभी सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल है तो ये राइट एक्सरसाइज नहीं हो सकता। एंड हिब्बा बिलवज और हिब्बा बशर्तुलवज, ये आपने हिब्बा जो गिफ्ट विच इज़ अ टॉपिक दैट यू मस्ट हैव स्टडीड इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो हिब्बा वो गिफ्ट जो कई दफ़ा ऐसा ना, एक तो वो हिब्बा है ना जिसको हम कहते हैं कि जो आपने सिर्फ लव एंड म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन के तहत आपने प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र कर दी, भाई ने भाई को दे दी, या आपका किसी से कोई रिश्ता था आपने उसको दे दी। एक वो हिब्बा होता है कि जिसमें आप ये लिखते हैं उस डीड में कि मैंने कुछ रकम वसूल कर ली है और मैंने मखसूस रकम वसूल की और अब मैं हिब्बा कर रहा हूँ, यानी आपने कुछ कंसिडरेशन लिया। या वो हिब्बा जिसमें आप ये कहते हैं कि नहीं मैं हिब्बा कर रहा हूँ और मैं इतनी रकम बाद में वसूल करूँगा, इन उसमें कहीं ना कहीं कंसिडरेशन आ रही है। तो ये गिफ्ट्स की कुछ वो हैं किस्में हैं जो विच इज़ द टॉपिक ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल क्योंकि फिर हम अपने इस टॉपिक से हट जाएंगे। तो ये यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल हो, या वो हिब्बा बिलीव्स हो, या वो हिब्बा बा शर्तुल इवज हो, where the property is transferred through dower, charity, inheritance, gift, exchange or compensation for a claim, or by the order of the court, यदि कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है किसी ज़मीन को सेल करने का, तो उस सूरत में भी नहीं प्रीएम्पशन का राइट नहीं होता। इट मस्ट आल्सो बी रिमेंबर दैट द शफी में टेक अ शेयर फ्रॉम वन ऑफ सेवरल परचेजर्स, बट इन केस ऑफ सेवरल सेलर्स ओनली वन परचेजर he mistake और relinquish the whole। अब let's suppose मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि जो एक प्रीएम्प्टर है, यानी एक ज़मीन के बहुत सारे प्रीएम्प्टर्स बन गए, उस ज़मीन उस खाते में बहुत अशराकतदार हैं, या वो जो ज़मीन ये जो भी शफ़ी की किस्में, वो सारी जो शफ़ी की किस्में वो काफ़ी ज़्यादा बन गई हैं। तो फिर उस वक्त जब ज़्यादा सारे लोग हैं तो फिर जाहिर बात है वो जो सोल्ड प्रॉपर्टी है उसमें से वो थोड़ा थोड़ा ही शेयर ले सकते हैं ना, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी 1 एकड़ की है और उसमें जो शफ़ी हैं वो काफ़ी ज़्यादा है तो वो थोड़ा हिस्सा लेंगे उसमें। बट अगर बहुत सारे सेलर्स हैं, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके सेलर्स काफ़ी ज़्यादा है, उन सब का उस प्रॉपर्टी में हिस्सा है, लेकिन जो शफ़ी है वो एक ही है, तो फिर वो उसको या सारे का सारा लेना पड़ेगा या फिर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट डिस्कस हो रहा है। इट शैल बी एक्सरसाइजेबल ओनली इन केस ऑफ ज़रूरत और टू अवॉइड ज़रर। सो कहने का इधर मकसद ये है कि ना सिर्फ आप शफ़ी हों, उन तीनों इकसाम में से किसी एक किस्म में आए आप, फिर जिस लैंड पे आप कर रहे हैं वो लैंड की जो कंडीशंस है वो जो मैंने ऊपर बताई हैं वो भी हों, फिर उसके अलावा भी आपने जो अपना वो जो प्लेंट है, आपने जो अपना क्लेम है उसमें ये लिखना है कि if this land is not sold to me, if this land is not going to be purchased by me,
तो फिर मुझे ज़रर होगा, मुझे नुकसान होगा, आई विल इंटेल लॉस। जब तक आप ये बात नहीं करेंगे कि मुझे लॉस नहीं है, इसका मतलब है कि फिर प्रीएम्पशन का आपका राइट नहीं बनता, आपका वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। फिर देन कम सेक्शन 8, वेयर दिस राइट वेस्ट्स इन एनी क्लास और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, सच क्लास और ग्रुप जॉइंटली एक्सरसाइज द सेम। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस क्लास, एक लैंड है और उसके साथ जो है कोई फाउंडेशन है या कोई ग्रुप है एक मखसूस लोगों का, उन्होंने उनकी उधर जगह है और वो कहते हैं कि जी हम शफ़ी हैं, तो फिर वो ग्रुप ऑफ पीपल कैन जॉइंटली जो है वो क्लेम कर सकते हैं, एज अ ग्रुप की शक्ल में वो क्लेम कर सकते हैं। If it is not exercised by them all jointly, then by any two or more of them may jointly exercise the same right. In none of the above cases, ऐसा का इजाफा नहीं, all of the persons in such class or group may exercise the right severely. So if अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल है और वो किसी वजह से वो दे डू नॉट वांट टू एक्सरसाइज दिस राइट जॉइंटली, देन दे कैन डू इट वन बाय वन, अलग-अलग सिवियरली वो अलग-अलग इसको कर सकते हैं। सो सेक्शन 9 है, व्हेन मोर देन वन पर्सन इज फाउंड हैविंग इक्वल राइट ऑफ प्रीएम्पशन, देन कोर्ट में डिवाइड सच प्रॉपर्टी इक्वली अमंग देम, नॉट डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्पेक्टिव शेयर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एंड इन माई खाता there is one other person who is selling his land, and I am the co-sharer in that land. I am co-sharer in khata, I am co-sharer with him, but my share is less, and there is another co-sharer who has more share in that land. So but we both can file for preemption suit, and the court will divide the sold property equally between me and the other person who has more share in that land. So it's not going to be like this कि मेरा शेयर कम है तो मुझे कम लैंड मिलेगी। नो, प्रीएम्पशन के सूट में लैंड इक्वली ही मिलेगी। In case of more than one shafi sued jointly or severally, if anyone withdraws the claim, others may continue. Section 10. So say there are some other instances. If the right of seller is defective, the preemptor takes over only defective title. कोई ऐसी ज़मीन है जो भी जिसका वो जो सिर्फ उस पर काबज़ है, उसका सिर्फ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, वो सिर्फ ऑक्यूपेंसी टेनेंट है, या वो उसका जो राइट ऑफ ऑनरशिप है वो उसके ऊपर कोई इनकम्बरेंस है, सो वट एवर आई एम गेटिंग फ्रॉम देयर, इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफेक्टिव थिंग, इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफेक्टिव टाइटल। वाई? Because it is not like you are not doing a new contract of sale, basically you are purchasing a right. Ownership is considered to be a precondition to exercise preemption. Where vendee denies ownership of property, preemptor cannot claim his right unless he has proved his title. अब ये examples है, ये instances हैं, यानी आपने ये बात कर रही है कि भाई अगले बंदे ने वो ज़मीन बेची और किसी ने ज़मीन खरीदी है। अगर किसी बंदे ने ज़मीन खरीदी ही नहीं है तो फिर, और वो वेंडी जो है, यानी कि अगर आप उसके खिलाफ केस किया, वो आके कहता है जी मैंने तो ज़मीन ली ही नहीं है, ये तो केस ही मेरे खिलाफ फॉल्स एंड फ्री, तो फिर प्रीएम्पशन का राइट नहीं होता। इफ़ अ पर्सन इज़ मेयरली अ टेनेंट, वो खुद ही किराएदार है, तब भी प्रीएम्पशन का राइट वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद किराएदार है वहाँ पे। सो इंस्टेंसेस ऑफ रिलिक्विशमेंट, किन सूरतों में ये राइट ख़त्म हो सकता है? Acquiescence in sale either by offering to purchase the property sold, or by asking the buyer to give it up, or by taking it from him on lease. यानी कि जो बायर है आप उसको कहते हैं भी या तुम छोड़ दो इसको, या जो सेल है वो मैं प्राइस पे करता हूँ, तो इस सूरत में फिर आप प्रीएम्पशन का राइट नहीं आप यूज़ कर सकते, फिर आप उसे डील ही करें। ये नहीं हो सकता कि आप उस बंदे से बाहर से जाके डील कर रहे हो, जब आपकी डील ख़त्म हो जाए तो आपके नहीं अब मैं प्रीएम्पशन का राइट करूँगा। नो, या तो तुम एकदम प्रीएम्पशन का राइट करो, सॉरी, और अगर नहीं करते तो फिर ये डील ना करो। वेयर प्रीएम्प्टिव एग्रीज टू कंपाउंड हिज प्रिविलेज ऑफ प्रीएम्पशन फॉर कंपनसेशन, वेयर ही गेट सम कंपनसेशन, वो उससे कुछ कंपनसेशन ले लेता है। अगर उसे कंपनसेशन ले ली और बाद में उसकी नीयत ख़राब हो जाए, नहीं अब मैं दोबारा प्रीएम्पशन करूँगा, तो ऐसे नहीं होगा कि मुझे कंपनसेशन थोड़ी मिली ज़्यादा मिली, थोड़ी ज़्यादा वाली बात नहीं है।
यानी कि कहना अगर आप डील में पढ़ गए तो फिर आप प्रीएम्पशन का राइट खो चुके हैं, बस सिंपल एज दैट। प्रीएम्पशन का राइट एडवांस होता है, जो ही आपको पता चले सेल का, आप प्रीएम्पशन का राइट एक्सरसाइज करें। अगर आप डील्स के चक्कर में पढ़ गए तो फिर आप प्रीएम्पशन का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सिंपल इसका एक वर्ड में जो इसका एक सेंटेंस हुई है, वेयर प्रीएम्प्टिव सेल हिज राइट फ्रॉम वेयर ही डिराइव दिस हिज राइट। अब मैं कहता हूँ जी कि मैं शफी शरीक हूँ और मैं जो है वो केस कर रहा हूँ, मैं केस करने लगा हूँ, केस कर दिया, अभी प्रोसीडिंग चल रही है, और वो जिस ज़मीन की वजह से मैंने ये केस किया मैं वो ज़मीन ही बेच दूँ, फिर तो वो सारा मसला ही ख़त्म हो गया। फिर तो यानी कि आई कैन मेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस, दैट if let's say I have sued somebody for preemption and there is this case, I have instituted this case in the court of law, and after 1 year I sell that property on the basis of which I was Shafi, Shafi keh le ya Shafi keh le, I was Shafi. So if I have sold this property, then my right has extinguished, my right of preemption has extinguished. Where preemptor acted as an agent of for seller. अब एक बंदा है वो ज़मीन बेच रहा है, मैं उसका जो है वो मैं उनकी डील कराता हूँ, जब डील हो जाती है तो फिर मैं कहता हूँ नहीं अब मैं इससे प्रीएम्पशन का राइट करूँगा, तो ऐसे नहीं होता। एक्सेप्शन, when preemptor was misinformed about the price, name of purchaser or article sold. Secondly, unavoidable delay was due to absence, illness or other inevitable incident. अगर ये चीज़ें प्रीएम्प्टर जो है वो कोर्ट में प्रूफ करता है तो फिर उसका प्रीएम्पशन का राइट रिलिंक्विश नहीं होगा। कि अगर उसको मिस इन्फॉर्मेशन थी, उसको पता नहीं था कि ये वही लैंड है जो बेची जा रही है, या नहीं पता, या इस तरह की कोई चीज़ अगर वो it will be depending upon the circumstances of the case. So there are some more instances here where section 17, where a preemptor before the decree of a court alienates the property on the basis of which he claims the right of preemption, such right shall abate. यानी वही बात कि प्रीएम्प्टर जो है वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो किसी को दे देता है, एलिएनेट कर देता है उसको, तो फिर वो अपना राइट ख़त्म होता है, जो अभी हमने पहले बात की है। ये इसमें सिर्फ सेक्शन 17 का हवाला है। एन एलिनी ऑफ द, अब जिसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एलिनिएट कर दी गई ना, वो जो नया बंदा है वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम नहीं कर सकता। मेरा राइट ऑफ प्रीएम्पशन बंदा था, लेकिन मैंने वो ज़मीन किसी को बेच दी, तो जिसको बेची है वो बंदा राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम नहीं कर सकता। वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन मेरा पर्सनल राइट है। वो The claim for preemption is to be made on the whole of the property, not at the part. 2 एकड़ ज़मीन बिक रही है तो आपने 2 एकड़ खरीदनी है, ये नहीं कह सकते जी कि मैंने इसमें 10 मरला खरीदनी है, उस पर मेरा प्रीएम्पशन बनता है। नो, ऐसे नहीं होता। A Muslim and a non-Muslim may exercise the right of preemption against each other. This is also very important thing. When the preemptor and the vendee have equal right of preemption, the property is shared by them equally. So for example, if the seller जिसने वो लैंड परचेज की है उसका, और अगर जो प्रीएम्पशन का जो राइट जो क्लेम कर रहा है, उन दोनों का उस ज़मीन के ऊपर एक ही जितना राइट है, तो फिर वो प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी। नो राइट ऑफ प्रीएम्पशन इन फॉलोइंग: वक्फ प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर चैरिटेबल, रिलीजियस और पब्लिक पर्पज, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी, the property acquired by a federal or provincial government or a local authority in pursuance of any law shall not be preemptible. और इसके अलावा भी गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को वो कह सकती है कि भाई इस प्रॉपर्टी पर राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक्सरसाइज नहीं होगा। अब इसमें अगर आप गौर से देखें ना, ये जो 2-3 है उसमें ये बेसिकली तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये लॉ डेवलप किया गया था, लेकिन हकीकत यही है कि कुरानी लॉ को तो कोई गवर्नमेंट जो है वो तो उसको नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे तो हम ये पढ़ रहे हैं कि भी गवर्नमेंट जो है वो किसी भी लॉ लैंड को जो है वो एक्सक्लूड कर सकती है। नंबर 1। नंबर 2, कुरान की तालीमात के मुताबिक अर्बन प्रॉपर्टी या कंटोनमेंट प्रॉपर्टी का उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें तो सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। लेकिन ये प्रीएम्पशन एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ विलेज प्रॉपर्टी पे, ये अर्बन और कंटोनमेंट वाली प्रॉपर्टी पे नहीं आता। तो ये आप देख लें कि ये हालांकि इस्लामिक लॉ है, लेकिन तब भी इसमें कुछ प्रोविजंस
इस्लामिक लॉ के ख़िलाफ़ है और उसके ऊपर बहरहाल केसेस हुए। उन्होंने कहा कि आप इन चीज़ों को चेंज करें, लेकिन जब वो जो हमारा ये प्रीएम्पशन का जो लॉ है, बहरहाल इसमें भी कुछ ये चेंजेस इनको करनी चाहिए, बट इट हैज़ नॉट येट बीन डन. So it's all for today. I'll see you next time.